is treated as the amount borrowed from directors is treated as quasi-equity for bank loan purpose. The company has to pay interest on this loan. Next current liability is duties and taxes. Duties and taxes are part of current liabilities. Duties and taxes includes GST, PT, that is professional tax, PF, ESI, income tax, TDS, and any other statutory dues applicable under the law of Kindly India. check audio bad quality. Hello, is it better? Is this better quality? Can you hear? Okay, I'll repeat. So duties and taxes. Duties and taxes are part of current liabilities. Duties and taxes includes GST, PT, that is professional tax, PF, ESI, income tax, TDS, and any other statutory dues applicable under the law of India or any other country where you have business. Duties and taxes must show outstanding balance of the last month only. This implies that you must pay your tax liabilities on time, on monthly basis or as applicable. Paying statutory dues in time shows you are a reliable businessman and it increases your credibility in the market. If it not only makes you more successful businessman, but also saves you from the headache of notices, penalties, interests, and fines. If you have not paid GST for 2 months, your e-way bill generation will be blocked. In GST era, all your payments are reflected online and it works as a CIBIL score for your business growth and for loan purpose. For duties and taxes, pass monthly journal voucher entries to adjust your output to input and show balance payable only. So the next current liability is any deposits received. Individual and partnership firm or LLP can accept the deposit or loan from public, but private limited companies can take loan only from shareholders, directors, and their relatives. Provisions. A provision is an account that records the present liability of an entity. As per the matching concept and accrual system of accounting, all expenses or liability of the same financial year must be recorded in books of accounts. Some more points on provisions. Provision is an expenditure relating to a particular period, but not falling due on the date of the financial statements. Since expenditure relates to particular financial period, a provision needs to be made against the revenue generated in the said accounting period. Provisions have to be calculated based on the information available. Few provisions are known from the information available after the date of balance sheet. For example, provision of income tax is calculated after finalization is completed. Some provisions are made based on a contract. For example, provision of professional fee is made based on terms of agreement. Now, accounting for provisions. First is provision can be created for expenditure that accrues and not for expenditure that arrives. For example, liability to pay insurance premium arises on due date and it does not accrue over a period, so it is improper to make provision. A provision may be made against an anticipated expenditure or against an anticipated loss. Provisions against anticipated expenses are shown under current liability, whereas provisions for anticipated losses are shown as reduction from the asset which is likely to result in loss. For example, provision for doubtful debts. Provisions are made at the end of every financial year. Provision must be made for any expenditure relating to the month of March
March incurred, but payment made in the next financial year. Company accountant must remember to make this provision. Forgetting to make this provision can artificially inflate the profit of the company. So every company must make the necessary provision of salary, rent, electricity charges, office expenses, other fixed expenses, etc. So surround yourself with assets, not liabilities. Thank you, madam. Yeah. Should I stop here, sir? Yes, madam. Okay, over to you, sir. Thank you. Very important part today we are going to discuss. आज बहुत हम important सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. इसमें सबसे फर्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स. बहुत सारे जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड लोग हैं दे आर कंफ्यूज विद सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स. सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है. सन्ड्री क्रेडिटर्स मींस अमाउंट owed to the vendors and supplier of goods and services. सन्ड्री क्रेडिटर्स ये होता है किसी से हम लोग मटेरियल लिया या सर्विस हम लोग उनसे लिया, उनको जो पेमेंट करना है दैट इज आवर सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स कभी भी बैलेंस शीट में कम होना चाहिए. सन्ड्री क्रेडिटर्स अपना ज्यादा होना चाहिए मींस इनडायरेक्टली अपना जो करंट असेट है वो ज्यादा होना चाहिए. लास्ट टाइम सेशन में हम लोग डिस्कस किया करंट असेट ज्यादा होने से अपना करंट रेशियो के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उसे कैसे अपने बिजनेस रिस्की पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या मीडियम रिस्क में कर रहे हैं, क्या हाई रिस्क में कर रहे हैं आप बिजनेस, इससे आपको समझ में आ जाता है. उसके लिए कभी भी अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स कम होना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स अपना ज्यादा होना चाहिए. क्रेडिटर्स जब आप पेमेंट करेंगे तो यू ऑलवेज डू पेमेंट ऑन अकाउंट पे चेक, क्रॉस चेक, एनईएफटी और आरटीजीएस. क्रेडिटर्स का पेमेंट्स कैश में आपको पे नहीं करना है. एक तो आपको अकाउंट पे ही चेक पे करना है, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, कैश में आपको पेमेंट नहीं करना है. सपोज आपका क्रेडिटर्स का पेमेंट मोर देन 2 इयर्स पेंडिंग है मींस आपने पेमेंट किया ही नहीं है, तो आपका जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस वो आपका इनकम ट्रीट हो जाता है. उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. कंपनी के एक्ट के हिसाब से सपोज आपने आपका जो कंपनी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस टाइम पे आपका क्रेडिटर्स को आप विद इन 45 डेज में पेमेंट करना है. वो सपोज एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किया तो सपोज आपने पेमेंट नहीं किया विद इन 45 डेज में, वो लोग आपका ऊपर लीगल एक्शंस ले सकता है. क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग अपना मैक्सिमम 45 डेज का रखना बहुत अच्छा रहेगा. मींस आपका जो बैलेंस शीट है वो हेल्दी बैलेंस शीट दिखेगा. सपोज आपका क्रेडिटर्स बढ़ गया तो इससे क्या होगा, आपका जो वर्किंग कैपिटल गैप है वो कम हो जाएगा. तो आपको बैंक से जो कैश क्रेडिट मिलने का है वो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा. तो उसके लिए आपका क्रेडिटर्स ऑलवेज मैक्सिमम 45 डेज में होना चाहिए. एज पर द रूल्स क्रेडिटर्स हैव द प्रायोरिटी टू रिकवर एनी ड्यूज. सपोज आपका कुछ ड्यूज है, सपोज आपका कंपनी लॉस में जा रहे तो सबसे प्रायोरिटी जो रिकवरी करने का है वो क्रेडिटर्स के लिए. उसके लिए क्रेडिटर्स का कभी भी आप पेमेंट नहीं रखना चाहिए, वो टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करना बहुत जरूरी है. सपोज क्रेडिटर्स मोर देन 2 इयर्स का है तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. ऐसे क्यों? क्योंकि आपने परचेज का तो बुक किया बट उनको पेमेंट आपने नहीं किया. उस टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या समझेगा, आपने जो परचेज का बिल बुक किया वो बोगस बिल है, उसके लिए आपने पेमेंट नहीं किया. जो भी मटेरियल आपको सप्लाई किया, सर्विस आपको प्रोवाइड किया, कोई भी प्रोवाइड करने के बाद वो आपका रिकवरी के लिए चुप बैठने वाला नहीं है. तो मीन्स आपने जो बिल किया वो करेक्ट बिल नहीं है. उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रिवर्स करके उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स लगाएगा. उसके लिए आपको जब लेजर स्क्रूटनी करेंगे, जब आपका बैलेंस शीट फाइनल करना है तो आपको ये देखना है, टैली में एक ऑप्शन है ट्रांजेक्शंस बोल के, ट्रांजेक्शंस में आपको देखना है ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजेक्शंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम दिख रहा है मींस वो क्रेडिटर्स में कुछ मूवमेंट ही नहीं है. जब वो क्रेडिटर्स का मूवमेंट नहीं होता है तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. वो आपको ध्यान में रखना है. क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया तो क्यों पेमेंट नहीं किया, और कुछ आपने कैश में पेमेंट किया तो कैश का एंट्री हुआ क्या नहीं,
क्योंकि कैश का तो पेमेंट आप मैक्सिमम 10,000 पर डे दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख आप दे सकते हैं। वो भी आपको देखना है कि इधर आपने कैश पेमेंट किया हुआ क्या। पहले जब जीएसटी नहीं था उस टाइम पे सिर्फ ये इनकम टैक्स का प्रोविजन में था, अब वो जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। जिसे जीएसटी एक्ट आ गया तो ये सब और चेंज हो गया। मींस आपने सपोज क्रेडिटर्स को 180 डेज तक आप उनको पेमेंट नहीं किया तो आपका आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जीएसटी एक्ट में। आप ध्यान में रखिए, जो भी क्रेडिटर्स है उनका पेमेंट आप 180 डेज में, सपोज 6 मंथ में आप उनको पेमेंट नहीं किया तो आपका आईटीसी रिवर्स होगा। उसके लिए ये दोनों प्रोविजंस एज पर इनकम टैक्स में क्या इफेक्ट होगा, एज पर जीएसटी में आपको क्या इफेक्ट होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जैसे सेशन खत्म होगा आप जाके आपका क्रेडिटर्स चेक कर दीजिए, कुछ चेक उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको राइट ऑफ करके उसका जीएसटी का रिवर्स करके, नहीं तो पेमेंट का पेंडिंग रहा तो आप उसको प्रॉपर पेमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है लोन फ्रॉम पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म में टेक लोन फ्रॉम इट्स पार्टनर रनिंग द बिजनेस। जैसे आपका पार्टनरशिप फर्म है, आपका बिजनेस रन करने के लिए एज ए पार्टनर आप पार्टनरशिप फर्म को लोन दे सकते हैं। वो सेक्योर्ड हो सकते हैं या अनसेक्योर्ड हो सकते हैं। आपको इंटरेस्ट भी पे करना है तो उसके ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट करना बहुत जरूरी है। सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे, रेम्यूनरेशंस दे रहे पार्टनर्स के लिए, उस टाइम पे टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होता है। बट आप एज ए लोन लिया, उनको इंटरेस्ट ऑन लोन आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। आप सपोज फर्म से रेम्यूनरेशन दे रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे, तो that is not attack the TDS provisions because that is treated as a facility, not as an other benefits. So आप suppose लोन लेके आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका TDS applicable होगा। वो जो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट जो आप एक्सपेंसेस बोल के क्लेम करके आप टैक्स का बेनिफिट उसको आपको मिलेगा। एंड ये जो लोन है आपको कभी भी जैसे बाहर से जैसे लोगों से लोन लिया ऐसे पार्टनर का भी लोन सेम होता है, वो भी आपको वापस करना है। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में बारो फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर टू रन इट्स बिजनेस। जिसे प्रोपराइटर फर्म में प्रोपराइटर से लेगा, ऐसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर से लेंगे, ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर से भी आप लोन ले सकते हैं। बट अभी रिसेंटली प्रोविजन ऐसे आया है, जब आप डायरेक्टर शेयर होल्डर से आप लोन लेंगे आपको ये चेक करना है जो डायरेक्टर शेयर होल्डर है वो पैसे क्या ओन सोर्स से दे रहे, क्या आप बैंक फाइनेंस और बाहर से लोन लेके आपको दे रहे। सपोज वो बाहर का लोन लेके आपको कंपनी को लोन दे रहे हैं तो आपको आरओसी को इंफॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको उसमें दिखाना है डायरेक्टर गिवन लोन, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर गिवन लोन टू द कंपनी आउट ऑफ ओन सोर्स और आउट ऑफ फ्रॉम द बैंक फाइनेंस और फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। The amount of borrow from direct is a quasi equity for bank loan purpose. लास्ट टाइम में भी हम लोग डिस्कशंस किया था, जैसे वो अनसेक्योर्ड लोन होता है, जैसे पार्टनर का जो लोन होता है और डायरेक्टर का जो लोन है उसको कैश क्वासी इक्विटी बोल के बैंक लोन पर्पस जब आपका डेट इक्विटी रेशियोज कैलकुलेशंस होता है उस टाइम पे ये कंसीडर होता है। ये आप लास्ट टाइम में भी हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशंस किया था। सो वी आर रिपीटिंग अगेन दिस। कंपनी इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इज ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। ये जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है इट्स ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या क्या आता है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जब आप बैलेंस शीट आपका हाथ में लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी पेबल आएगा, पीटी पेबल आएगी, पीएफ पेबल आएगी, ईएसआई, इनकम टैक्स, टीडीएस, एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यू, जो भी आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज अंडर द इनकम अंडर द इंडियन लॉ और जो भी कंट्री अदर देन कंट्री का भी कुछ लायबिलिटी कंप्लायंस रहा तो ये अंडर करंट लायबिलिटी में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रिफ्लेक्ट होता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस शो आउटस्टैंडिंग बैलेंस लास्ट मंथ ओनली। मींस आपने मंथ टू मंथ अपने पेमेंट करते गए तो वो सिर्फ लास्ट महीने का ही लायबिलिटी उसमें दिखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो लायबिलिटी कंप्लायंस पार्ट है वो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस एवरी मंथ यू आर पेइंग। इससे इम्प्लीकेशंस, इट्स ए साइन ऑफ गुड साइन फॉर द बैलेंस शीट। आपको मंथ टू मंथ सिर्फ लास्ट मंथ का ही आपका जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिख रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड साइन, मींस यू आर अंडर continuous compliance and very good compliance under your balance sheet part. Paying statutory dues in time shows you are reliable in business and increase your credit markets. जैसे आपने रेगुलर पेमेंट किया तो आपका
बिजनेस का रिलायबिलिटी, लोगों का रिलायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ेगा और आपका क्रेडिबिलिटी मार्केट में भी बढ़ेगा, आप बिजनेस में भी सक्सेस हो सकते हैं। जैसे एक बार आपने कंप्लायंस नहीं किया तो 2 महीने में आपने सपोज जीएसटी पे नहीं किया तो आपका ईवे बिल ब्लॉक हो जाएगा। 6 मंथ आपने जीएसटी पे नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल का शोकाज नोटिस भेज देंगे। इसके लिए आपका हेडेक बढ़ेगा। उसके लिए आपका जो भी नोटिस हेडेक है, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, फाइन, इससे आपको बाहर आना है तो आपका जो भी टैक्सेस का कंप्लायंस है वो इन टाइम पे करना बहुत जरूरी है। जैसे आपका हम लोग पहले बचपन पे बोलता था जैसे फैमिली के लिए डॉक्टर्स और जो कोर्ट कचहरी का ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपका फैमिली का ग्रोथ और फैमिली का लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही सेम आपका बिजनेस में भी ऐसे सेम कॉन्सेप्ट है। आपको स्मूथ बिजनेस, हैप्पी बिजनेस, इफ यू वांट ए पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ स्लीप, आपको मंथ टू मंथ गवर्नमेंट का टैक्स पे करके विदाउट एनी हेडेक ऑफ नोटिस, पेनल्टी, फाइन्स रहना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जैसे आपका जीएसटी आपने इन टाइम पेमेंट नहीं किया तो आपको कस्टमर में काम नहीं रहेगा, बिकॉज इट्स वर्क लाइक ए सिविल रिपोर्ट। जैसे आप लोन लेने के लिए गए तो आपका सिविल रिपोर्ट मिनिमम 750 प्लस होना चाहिए तो ही आपको बैंक लोन देंगे। ऐसे आपका जीएसटी का भी ऐसे ही है, आप प्रॉपर जीएसटी रिटर्न भर रहे, 3B भर रहे, पेमेंट कर रहे तो ही आपको बैंक का लोन मिलेगा, नहीं तो आपको बैंक लोन भी नहीं मिलेगा और बिजनेस भी आपको सामने वाला नहीं रहेगा। सो आपको इन टाइम जीएसटी रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। Duties and taxes pass monthly journal vouchers entry to adjust your output and show balance payables। ये जो है वो अकाउंटिंग का फाइनलाइजेशन एंट्री है। ये ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेंट जो लोग हैं उनके लिए समझने है इसका। एवरी मंथ आपको जो भी आउटपुट है उसको इनपुट से एडजस्ट करके जो भी बैलेंस पेबल रिफंड रहेगा, एवरी मंथ टू मंथ आप जेबी पास करने से आपका लायबिलिटी या रिफंड है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Any deposit received, individual and partnership firm LLP can accept the deposits, loan from public, but private limited company cannot take the deposit or from other than shareholder and directors। Proprietary concern और पार्टनरशिप फर्म और LLP बाहर लोगों से लोन और डिपॉजिट ले सकते हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इज प्रोहिबिटेड, मींस आप अदर देन शेयर होल्डर, डायरेक्टर एंड LLP छोड़ के आप बाहर लोगों से लोन नहीं ले सकते। जो नेक्स्ट है वो प्रोविजंस है। प्रोविजंस इज एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी। जैसे आपका प्रोविजंस, जैसे आपका जो भी मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस होता है, फिक्स एक्सपेंसेस जो होता है, जैसे सपोज ये ज्यादा क्वेश्चन किधर आएगा आपका 31 मार्च का जब आप बैलेंस शीट फाइनल करेंगे उस टाइम पे मार्च का रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसी मंथ में आपको बुक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एक्सपेंसेस क्या होगा नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो इधर प्रॉफिट मिसमैच होगा। आपने अप्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे, मैचिंग कॉन्सेप्ट आप जब फॉलो कर रहे तो आपको उसी मंथ का जो भी एक्सपेंसेस है, प्रोविजन है, उसी मंथ में अकाउंटिंग करके लेना बहुत जरूरी है। प्रोविजन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पीरियड बट नॉट फॉलिंग ड्यू ऑन द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी एक्सपेंसेस है वो 31 मार्च 21 का रिलेटेड है तो आपको 31 मार्च 21 में एंट्री करना। उसका पेमेंट चाहे आप नेक्स्ट ईयर में पेमेंट हुआ तो भी आपको उसका जो प्रोविजन है वो आपको करंट ईयर में मींस 31 मार्च 21 को एंट्री करके लेना बहुत जरूरी है। कुछ प्रोविजन ऐसे होता है कि आपको बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद समझ में आ जाती है। द प्रोविजन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। जैसे आपका बैलेंस शीट फाइनल हो गए, बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद आपको इनकम टैक्स का प्रोविजन करना पड़ेगा। ये जो प्रोविजन है ये आफ्टर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन होने के बाद आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। इसके लिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में रहते हैं, जैसे आपका लॉयर का फीस है, सीए का फीस है, कंसल्टेंट का फीस है, जो भी आपका फीस देना है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहते हैं, वो भी आपको देके प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। Provisions can be treated for expenditure that accrues, not expenditure that arise। जो भी प्रोविजंस होता है वो आपका अप्रूवल सिस्टम होता है, उसके लिए आपको प्रोविजन करना है, बट वो पेमेंट हम लोग नहीं करते, उसका नेक्स्ट इसमें हम लोग पेमेंट होता है। लायबिलिटी टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम अराइज ऑन द ड्यू डेट बट इज नॉट अप्रूव ओवर ए पीरियड सो इट्स इम्प्रॉपर टू मेक द प्रोविजन। जैसे आपका इंश्योरेंस रहता है, जैसे आपका एम्प्लॉय इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, वो ऑन दैट डेट वो अप्रूव होता नहीं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू डेट हम लोग इसको पेमेंट करते हैं। उसके लिए उसका प्रोविजन करना इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक द प्रोविजंस। आपको जैसे आप प्रीमियम पे करेंगे उसी टाइम पे उसका एंट्री करना जरूरी है। उसके लिए आपको प्रोविजन करने का, इंश्योरेंस का प्रोविजन करने का जरूरत नहीं है।
प्रोविजंस में मेड एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर और एंटीसिपेटेड लॉसेस। आपको एक तो एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर्स मींस आपका जो भी एक्सपेंडिचर होने का चांसेस है उसका भी प्रोविजन आप कर सकते हैं, और एंटीसिपेटेड लॉस का भी आपने उसका प्रोविजन कर सकते हैं। जो एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर है वो आप करंट लायबिलिटी में प्रोविजंस में दिखा सकते हैं, और जो लॉसेस है वो आप आपका डेटर्स में कम हो जाते हैं। मींस आप फॉर एग्जांपल आप डाउटफुल डेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। डाउटफुल डेट मींस आपका पैसे कस्टमर देने का चांसेस नहीं है, उसके उस टाइम पे आप क्या करेंगे, उसको डाउटफुल डेट्स में आप ट्रांसफर करेंगे। उस टाइम पे आपका डेटर्स कम हो जाएगा और डाउटफुल डेट एक्सपेंसेस में प्रोविजंस में बढ़ जाएगा। प्रोविजंस आर मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे अपने 31 मार्च 21 में हम लोग उस ईयर का प्रोविजन जो भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो वो आपको एंट्री करना बहुत जरूरी है। आज एज ए अकाउंटेंट आपको ये देखना है हर एक एक्सपेंसेस जो है, फिक्स एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो भी है वो सब प्रोविजंस होना बहुत जरूरी है। सपोज प्रोविजंस नहीं किया आप उस पीरियड पे, आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा, और वो रियल प्रॉफिट नहीं होगा। वो आपने एक्सपेंडिचर जो है आपने कम बुक किया, उसके लिए आपको उस ईयर का उसी ईयर में एक्सपेंसेस का प्रोविजन करके एंट्री करके फाइनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। एंड द कोट इज सराउंड योरसेल्फ विद एसेट नॉट लायबिलिटीज। ये बुक का मेन पर्पस वही है, जिसको लोन लेना है तो कितना लोन लेना है, क्यों लोन लेना है, लोन लिया तो आप कैसे आपको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, रीपेमेंट कैसे करना है, आपका पर्पस क्या है लोन का, आप ये सब चीजें ये बुक्स में ज्यादा से ज्यादा फोकस किया हुआ है। वी आर ऑलवेज सजेस्ट यू सराउंड विद एसेट्स एंड नॉट लायबिलिटी। लोन लिया तो भी आपको कैसे रीपेमेंट करना है, कितना लोन लेना है, कैसे आपका रीपेमेंट कैपेसिटी से हिसाब से आपको लोन देना है, ये सब चीजें बुक्स में ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया हुआ है। रीजन यही है, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे बिजनेसमैन उनका बिजनेस स्टार्ट कर देते तो थोड़ा थोड़ा लोन लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे उन्होंने स्टेज में आ जाए तो उनका जो क्रेडिटर अपना कैश क्रेडिट है, टर्म लोन है, इतना बढ़ जाते तो उनको रीपेमेंट करने के लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। जैसे कोविड जैसे सिचुएशन आ गया तो उनका बिजनेस ही कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। उसके लिए आपको एज ए पर्सनल फैमिली लाइफ में या बिजनेस में आपको जो भी लोन लेना है तो आपका रीपेमेंट कैपेसिटी, आपका पर्पस, वो किसके लिए आप यूज कर रहे हैं, उसका लोन लेने से आपको क्या फायदा होगा, आपका कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एनालिसिस करके लोन लेना है। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि आप लोन नहीं लेना है बैंक से, आपको लोन लेना है, लिया तो भी उसको कैसे यूज करके आपका खुद का ग्रोथ कैसे करना चाहिए, कैसे आपका रीपेमेंट होना चाहिए, इसमें ज्यादा आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। अंजलि मैडम, you can start with fixed assets. We have another 15 minutes. Okay, thank you, sir. Yeah, thank you. So since we saw this quote, surround yourself with assets and not liabilities. So let's have a look at assets. Fixed assets. The fixed assets of balance sheet are the long-term assets owned by the organization and utilized for revenue generation. More fixed assets in the balance sheet indicate more tangible net worth of the company. In case of fixed assets, we can make the following bifurcation. First is assets required for business operation. Next is assets required for office administration. Then is assets required by owners for company business. And then assets required to earn rent. So we'll see assets required for business operations. Assets that are primarily required for running the business are business assets and also called as revenue generating assets. We strongly recommend that business owners to never compromise in purchasing the assets required for business operations. Any compromise in purchasing such fixed assets may affect the quality as well as your business growth. In a manufacturing company, the primary asset is the machinery. We recommend that the company should purchase all the machineries required for running the business. If you are outsourcing some work, that is job work, to some other company, then plan to purchase the required machinery and make it in-house. This increases the profit and the business grows faster, giving you an edge over the competition. Now, treatment of depreciation of fixed assets. Another benefit of purchasing fixed asset is that the business can claim normal depreciation as well as additional depreciation subject to fulfillment of certain terms and conditions.
If you sell an asset after claiming depreciation, then you must reverse GST credit taken at the time of purchase or pay GST on sale consideration. If you have sold any fixed assets and consideration received is more than the written down value, that is book value of the assets on the date of sale, then the excess amount is treated as short-term capital gain and is liable for income tax. Now we'll see assets required for office administration. Assets required for office administration include computer, furniture, printer, fan, air conditioner, etc. A company may compromise in purchasing the assets required for office administration as it doesn't affect the quality of the product. However, in this age of competition era, office infrastructure is an important part of business development. It is an important aspect of client and employee retention. Office assets are also liable for depreciation and one can save income tax on it. For IT companies, office infrastructure is more important to the business compared to manufacturing companies. Let's have a look at assets required by owners for business. The proprietor, partners, or directors may require fixed assets to run the business. This requirement must be for running the business efficiently or is essential for generating revenue. For example, buying a luxury car increases the EMI burden, plus its cost reduces to 25% as soon as it leaves the showroom. Purchase assets as per the capacity and requirement. Focus first on growing the business and on increasing your buying capacity. It is not necessary to show off your status through such purchases. Now we'll see assets required to earn rent. A person or company may acquire fixed assets to let out on rent. In such cases, you can claim more depreciation as compared to assets purchased for your own business. You may also show the income on deemed income basis for filing your income tax return, and you need not maintain the books of accounts. Income from house property is liable to tax at 70% of the income only. Rest 30% can be claimed as reduction for repairs and maintenance. Thank you, madam. Over to you, sir. Thank you. Fixed assets. We completed liability part. Now we started the asset part. Assets, fixed asset of balance sheet are the long-term asset owned by the organization and utilized for revenue generation activities. जो फिक्स एसेट है आपका रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी, जो मेजर अभी मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मशीनरी इज द रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. दिस इज द फिक्स एसेट फॉर दैट कंपनी. जितना ज्यादा असेट्स आपका बैलेंस शीट में है उतना आपका टेंजिबल नेटवर्क, दिस इज वन ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कंपनी, आपका ज्यादा हो जाएगा. ये ज्यादा होना बहुत जरूरी है. फिक्स एसेट ज्यादा होना चाहिए, आपका लोन्स लायबिलिटी कम होना चाहिए. फिक्स एसेट में हम लोग 4 कैटेगरी किया हुआ है. फर्स्ट वन है असेट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन. आपका जो बिजनेस के लिए जो लगेगा असेट्स, मींस जो प्राइम असेट्स है, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीनरी इज द प्राइम असेट्स, वो असेट्स अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं. जो दूसरा असेट है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका ऑफिस के लिए कौन सा असेट लगेगा. और तीसरा है रिक्वायर्ड बाय ओनर्स फॉर बिजनेस, आपका जो ओनर है उनके लिए खुद के लिए जो असेट्स लेंगे, वो तीसरा हम लोग कैटेगरी किया हुआ है. और चौथा जो है वो अर्निंग द रेंट, अपने जो असेट्स परचेज करेंगे, चाहे वो आपका व्हीकल फॉर ओला कैब इसके लिए, या आप कुछ घर ले रहे उसका रेंट देने के लिए, या फैक्ट्री शेड ले रहे आप रेंट देने के लिए. ऐसे 4 कैटेगरी हम लोग इसमें बाइफर्केशंस किया हुआ है. हम लोग वी कैन गो वन बाय वन. फर्स्ट असेट जो है रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन, दिस इज द प्राइमरी रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस. इसको रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हम असेट्स हम इसको बोल सकते हैं. मींस आपका जो मशीनरी है दैट इज आवर रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स. हम लोग स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करेंगे
जो रेवेन्यू जनरेटिंग मशीनरी है आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप उसमें कॉम्प्रोमाइज होने से क्या होगा, आपका बिजनेस का क्वालिटी खराब होगा, आपका बिजनेस का ग्रोथ भी कम हो जाएगा। उसके लिए हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीनरी इज द प्राइमरी एसेट्स, आपको हम लोग सजेस्ट करेंगे आपको जो भी मशीनरी लेना है बिजनेस के लिए आपको वो परचेज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कुछ लेबर जॉब वर्क आप आउटसोर्सिंग करेंगे, तो आउटसोर्सिंग करने से आपका क्या होगा, आपका जो भी मार्जिन पोर्शन है वो कम हो जाएगा। उसके लिए आपको जो भी मशीनरी आपको लिस्ट आउट करना है, सपोज मेरे को इतना ये बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो मेरे को नेक्स्ट जो मशीनरी लेना है वो अपने डिसाइड करना है। जो आप आउटसोर्सिंग करेंगे जो जॉब वर्क आप उसको इनहाउस करने के लिए कौन सा मशीनरी आपको परचेज करना है, वो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करके आपको मशीनरी लेना है। इनहाउस करने से आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी ज्यादा फास्ट में ग्रोथ हो जाएगा। इसका डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। असेट लेने के और एक आपको बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो आप कुछ असेट परचेज करो, गाड़ी परचेज करो, ऐसे आपको सजेशन मिलेगा क्योंकि आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपने सितंबर से पहले लिया तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, और सपोज सितंबर के आप बाद में लिया तो आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। 50% मींस सपोज प्लांट एंड मशीनरी का 15% है, सितंबर से पहले लिया तो आपको 15% मिलेगा, उसके बाद में लिया तो 7.5% आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये भी आपको देखना है, असेट ओनली डेप्रिसिएशन के लिए परचेज नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे रॉन्ग एडवाइस देते हैं, सर आप एक बड़ा BMW गाड़ी ले लो, आपको बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट उसका पीछे आप लोन कितना ले रहे, EMI कितना भर रहे, क्या वो खुद का पैसे से ले रहे, ये भी एनालिसिस करना बिफोर सजेस्टिंग, ये भी आपको एनालिसिस करना है। सपोज आप टैक्स सेव कर रहे हैं डेप्रिसिएशन से 3 लाख रुपए, सपोज आप बैंक को इंटरेस्ट 4 लाख का पे कर रहे हैं, 5 लाख का पे कर रहे हैं, उसको भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, बट उससे ज्यादा पे कर रहे हैं तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए असेट्स लेना भी कभी कभी आपका गलत हो सकते हैं, उसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन आपको एक्चुअली कितना मिलेगा, क्या आपको फायदा होगा। मशीनरी पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। सपोज अब कुछ कंडीशन से आप फुलफिल किया तो आप सपोज मशीनरी लिया 15% प्लस 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। सपोज आपने मशीनरी कुछ सेल किया तो आपको GST भी रिवर्स करना बहुत जरूरी है। GST रिवर्स करना और आपको GST उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। पहले इससे नहीं था, जैसे एक्साइज और वैट में आपको वैट रिवर्स नहीं होता था, बट आप वैट पे कलेक्ट करके पे करता था गवर्नमेंट को, बट अभी इधर GST भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सपोज आपने फिक्स एसेट सेल किया, जैसे अभी आप एक मशीनरी लिया, उसको 10 लाख को लिया, डेप्रिसिएशन लेने के बाद उसका जो WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो 31 मार्च 21 को सपोज 2 लाख रुपीज है। सपोज आप उसको 2,50,000 में सेल किया तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में उसके ऊपर आपको नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज वो ब्लॉक में अभी आपका असेट्स है, सपोज आपका 15% ब्लॉक में असेट्स है तो वो ब्लॉक से उतना वैल्यू कम हो जाएगा। इसके लिए आपको ये भी ध्यान देना है, जब आप WD जो असेट्स आप सेल करेंगे तो आपका ब्लॉक नील हुआ तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ब्लॉक नील नहीं हुआ तो उतना जो भी आप सेल वैल्यू है वो आपका असेट से कम हो जाएगा। असेट रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अपने को कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो अभी हर एक जगह पे आपको मैंडेटरी हो गया। दिस इज आल्सो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नाउअडेज। फर्नीचर, प्रिंटर, फैन, एयर कंडीशनर, कंपनी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया तो चलेगा, बट आज की इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिजनेस में मशीनरी के साथ में आपका ऑफिस अच्छा होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, आपका एक तो बिजनेस डेवलपमेंट होगा, आपको कस्टमर से ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी देके आपको बिजनेस देंगे, उसके साथ में आपका एम्प्लॉई लोगों को भी गुड फीलिंग हो कि वो भी आपके साथ में काम करना चाहते हैं। तो ऑफिस एसेट आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, जैसे आप रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स में जैसे आप डेप्रिसिएशन मिलता है, वैसे आपको इधर ऑफिस असेट्स के भी ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे IT कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम लोग IT कंपनी दे आर मोर फोकस ऑन द ऑफिस। जैसे आप IT कंपनी का देखा तो जैसे उनका ऑफिस इतना अच्छा तरफ से MNC कंपनी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा उनका सेटअप होता है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आल्सो डूइंग गुड थिंग, बट IT कंपनी में जो ज्यादा से ज्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा वो लोग फोकस देता है। Asset required by owner for business.
जैसे अभी आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अभी बहुत सारे लोग जैसे बिजनेस स्टार्ट हो जाता तो इमीडिएट वो लोग कार लेते, तो मैं पूछता हूँ सर आप कार लेना क्या जरूरी है, दे आर एक्सप्लेनिंग सर कार लेने से जैसे कुछ छोटा मोटा मटेरियल मेरे को डिलीवरी करना है तो बार बार मेरे को टेम्पो बुलाना पड़ता है, उससे अच्छा मैं जो मटेरियल है मैं वो कार से लेके जाता हूँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसे आप कुछ असेट्स लेना है तो इट इज वेरी गुड, बट आप लग्जरी कार लिया तो आपको ज्यादा से ज्यादा बर्डन हो जाएगा, जैसे वो शोरूम से नीचे आ जाएगा तो उसका 25% वैल्यू उसका कम हो जाएगा। उसके लिए आपको कार लेना है, आपका कितना कैपेसिटी रीपेमेंट का कैपेसिटी कितना है वो देखना है, आपका बिजनेस के लिए वो कितना हेल्प होगा, आपका फैमिली के लिए कितना हेल्प होगा, आपको जितना नेसेसिटी है उतना आप कार लेना चाहिए, सिर्फ अपने को दिखाने के लिए नहीं। तो मेरा फ्रेंड्स ने लिया, मेरा रिलेटिव्स ने लिया कार या BMW मर्सिडीज मेरे को लेना है, ये टोटली गलत हो सकते हैं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो दूसरा जो असेट है टू अर्न द रेंट, रेंट अर्न करने के लिए भी कुछ असेट हम लोग परचेज करते हैं, कैसे अभी बताया कि ओलो उबर में हम लोग कुछ कार हम रेंट पे दिया हुआ तो उधर का भी रेवेन्यू अपने को आ जाता है, तो उधर उसके लिए अलग डेप्रिसिएशन का रेट है। और उस इनकम टैक्स में भी आप डीम्ड इनकम मींस पर मंथ आप 7,500 भी दिखा सकते हैं, उधर नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे अपना 44 AD में बिजनेस लोगों के लिए 6% एंड 8% आपने दिखाया, नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे प्रोफेशनल लोगों के लिए आपने 50% 44 ADA में जैसे आप 50% आपका इनकम बताया तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है। उसके लिए ऐसे ही इधर इवन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इसमें भी ऐसे ही है, आप कुछ 7,500 पर मंथ और कुछ 1,000 पर मंथ पर टन ऐसे कुछ फॉर्मूला है, आप उस हिसाब से आपने इनकम बताया तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, आप उसकी बेस पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे आपने रेंट के लिए प्रॉपर्टी लिया तो आपको 100% रेंट के ऊपर टैक्स नहीं पे करना है, आपको सिर्फ 70, सपोज आपका रेंट इनकम है 10 लाख रुपीज, आपको सिर्फ 7 लाख के ऊपर टैक्स पे करना है, 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर हो जाता है। थैंक यू, वील स्टॉप हियर एंड Kote sir he joined and I will do allow to Kote sir and he'll take a session on share trade. Kote sir, you can unmute yourself. Yes, done, sir. Yes sir, please you can start. Sir, no view photo. Okay, just a minute sir. You can start video sir. Yes, I can. Just a minute. Sir, now you do unmute. Done, sir. Problem is there, I think. Just a minute. Okay. Sir, now you open. Sir, do you unmute? Yeah, done, sir. Yeah. Sir, video is blocked from your side. Not opening. Can you start, sir? I can. Yes, please. Shall I? Yes, sir. Please.
Sir, video problem. Video. Just Unmuted from your side. you now check, sir. Yes. Yes. No. Now it is okay. No, no, sir. Where it is? Hello. Hello. Yes, sir. You can start. Sir, without video, can I? Now your video is on, sir. No, sir. I am not. You are visible. No, I am not visible, sir. I am seeing. But here I am not visible. You can start, sir. You are visible. Okay, okay. Yes. Good evening to all. My name is MS Kote, having more than 15 years experience in this market. Okay. The basically बहुत सारे लोगों का फोन आया, मुझे मैसेज आया, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. एक्चुअली डीमैट अकाउंट इज लाइक ए बैंक अकाउंट. जैसा आप आपका बैंक अकाउंट में पैसा डालते हो वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखने के लिए रहता है. ट्रेडिंग अकाउंट ओनली फॉर ट्रेडिंग, बाई करना है, सेल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओनली दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इन ट्रेडिंग. ओके. डीमैट में जो भी आप शेयर्स बाई करेंगे, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स बाई किया, रिलायंस बाई किया, XYZ ABC, जो भी शेयर्स बाई किया आपने, वो आपका अकाउंट में चले जाएगा एंड वहां पर डिलीवरी बेस में रहेगा. 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, कितना दिन आप रखना चाहते हो वहां तक आप रख सकते हो. ठीक है. दैट इज व्हाट वी कॉल डीमैट एंड ट्रेडिंग डिफरेंस. एंड सेकेंड थिंग मुझे बताना है कि मार्केट बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है बट शेयर्स नहीं जा रहा है. द थिंग इज मार्केट शॉर्ट कवरिंग के वजह से ऊपर जा रहा है बट शेयर्स क्यों नहीं जा रहा है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेयर्स. वन इज मिडिल कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप. स्मॉल कैप मीन्स नर्सरी स्कूल जैसा छोटा सा. मिडिल कैप मीन्स हाई स्कूल. ठीक है. लार्ज कैप मीन्स कॉलेज. सो ये दिस टाइप ऑफ शेयर्स वहां पर कहां पर करना है, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट बुकिंग कहां पर आ रहा है. मिड कैप में आ रहा है, लार्ज कैप में आ रहा है, स्मॉल कैप में आ रहा है, आपको वो चेक करना है. अगर मिड कैप में सेलिंग है तो ही वो मिडिल कैप शेयर्स नीचे आएगा. अगर लार्ज कैप में सेलिंग है तो ही वो लार्ज कैप में नीचे आएगा. अगर मिड कैप में बाइंग है तो मिड कैप बाइंग जाएगा. अगर लार्ज कैप में बाइंग है तो लार्ज कैप बाइंग जाएगा. लाइक रिलायंस, टाटा मोटर्स, बहुत बड़े बड़े शेयर्स जो भी है, मारुति सुजुकी, ये सब लार्ज कैप है, वहां पर बाइंग आप देख सकते हो. ठीक है. सेकेंड थिंग, मिड कैप में कितना करोड़ का पैसा होना चाहिए. मिड कैप किसको हम लोग बताते हैं, मोर देन 5000 करोड़ जिसका कैपेसिटी है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन है 5000 करोड़ एंड अबो, उसको हम लोग मिड कैप बोलते हैं. ठीक है. स्मॉल कैप बिलो 5000 करोड़, स्मॉल कैप बिलो 5000 करोड़, उसको हम लोग स्मॉल कैप बताते हैं. एंड लार्ज कैप मोर देन 20,000 करोड़ जो कंपनी में मार्केट कैप है उसको लार्ज कैप हम लोग बताते हैं. ठीक है. ये मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में डिलीवरी बेस आप ले लीजिए. आजकल बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग हो गया है. बहुत सारे लोग ओनली ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, नॉट डीमैट अकाउंट. मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप आया है, मैसेजेस आया है, सर मेरा अकाउंट में डिलीवरी बेस नहीं हो रहा है. बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज, एग्जाम्पल जीरोधा हो या अपस्टॉक हो या 5 पैसा हो, कोई भी फ्री में डीमैट अकाउंट फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपका डिलीवरी बेस वहां पर नहीं दिख रहा है आपको. अगर आपको डिलीवरी बेस करना है तो अच्छे कंपनीज में, प्रॉपर कंपनी में डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए. वहां पर डिलीवरी बेस ऑलवेज आप आपका अकाउंट में रखते जाइए. हर मंथ थोड़ा 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 पैसा डालिए, वहां पर डिलीवरी बेस आप ये कर दीजिए, बाइंग करते रहिए, टाइम दे दीजिए मार्केट को. टाइम देने के बाद ही मार्केट अपसाइड हो जाएगा. ओके. एंड सेकेंड थिंग, द
डिफरेंस क्या है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? बहुत सारे लोगों का फोन आता है मुझे, सर ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है, ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन मतलब मोबाइल में टैब में बाइंग सेलिंग करने का वो ऑनलाइन मॉडल है। सेकेंड थिंग, अगर जिसको टैब में आता नहीं है, जिसको मोबाइल में नहीं आता, जिसको फोन पे नहीं आता, एटलीस्ट वो फोन करके तो ऑर्डर डाल सकते हैं। वहां पर एक डीलर रहता है, एक आरएम रहता है, वहां पर फोन करके ऑर्डर डालने के लिए हम लोग रिलेशनशिप मैनेजर को रखते हैं। ब्रोकिंग हाउस एक रिलेशनशिप मैनेजर को रखते हैं। वहां पर आप ऑर्डर डाल के फोन करके आपका डिलीवरी बेस या इंट्राडे बेस आप एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। ये मॉडल है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। ठीक है, मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास 10,000 रुपए है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं एक काम करता हूँ, वोडाफोन का शेयर 12 रुपए में मिल रहा है, 1,000 क्वांटिटी लेता हूँ, सिर्फ 12,000 तो इन्वेस्टमेंट करना है। जब वो 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो 50% डाउन होता है तो आपका कैपेसिटी मनी प्रॉब्लम जो आपका मेन प्रॉफिट बुकिंग जो है 12,000 से 6,000 रुपए आ जाता है। ठीक है, सो इसलिए वही 12,000 का दो रिलायंस, दो टाटा मोटर, दो बड़े बड़े कंपनी का अगर आप किया, सो 6,000 का जो लॉस है वो वहां पर नहीं होगा। अगेन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। अभी वोडाफोन ने बहुत सारे लोग 14 रुपए में लिया था, अभी 5 रुपीज में आ गया। एस बैंक में बहुत सारे लोग ने हायर प्राइस पे लिया था, अभी एक्स बैंक का शेयर देखिए कहां से कहां आ गए। सो मार्केट ऑलवेज प्रोवाइड होता है, हेल्प होता है ओनली लार्ज कैप एंड मिड कैप सेक्टर को। ओके, मिड कैप एंड लार्ज कैप सेक्टर ओनली अप लेके जाएगा। स्मॉल कैप कभी कभी सेंसेक्स ऊपर गए, जैसा आज 54,000 क्रॉस हो गया, निफ्टी क्रॉस हो गया 16,350। सो उस टाइम में आपको सारे शेयर्स प्रॉफिट में दिखेंगे। बट आज जी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस है, सर इंडेक्स ऊपर जा रहा है मगर स्टॉक नहीं जा रहा है, बिकॉज इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर गया बट स्टॉक नीचे आया, क्योंकि मिड कैप में और स्मॉल कैप में सेलिंग हुआ था। कल भी सेलिंग हुआ है, आज भी सेलिंग हुआ है, इसलिए स्टॉक अपडेटेड नहीं है, इसलिए स्टॉक मूवमेंट कम है। इसलिए ऑलवेज बी विथ लार्ज कैप गुड पोर्टफोलियो। अगर आपको पैसा चाहिए टाइम टू टाइम पे, अगर आप प्रॉफिट करना है आपको, तो ओनली लार्ज कैप एंड लार्ज कैप में रहिए। ऐसा हाई लेवल मार्केट पे अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी है अभी 16,400, सेंसेक्स है 54,000, बैंक निफ्टी है 36,000। ये लेवल पे बाइंग करना मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, एक बॉल अगर आपने जोर से फेंका है तो अप साइड जितना एनर्जी है उतना अप जाएगा, उसके बाद डाउन साइड आ ही जाएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी। अभी मार्केट 2 दिन से डाउन साइड था, आज अप साइड गया, अगेन डाउन साइड होने का चांसेस बहुत है मार्केट में। ये लेवल भी बी कॉशन, केयरफुली रहना है। ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है बट केयरफुल से करना है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने का चांसेस ज्यादा है इस इंडस्ट्री में। सो जैसा हाई लेवल क्रॉस करेगा वहां पर आप सेल कीजिए, डाउन आए तो बाई कीजिए। यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। ये लेवल पे मैं मार्केट में बाइंग का सजेशन नहीं दे दूंगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे तरफ से नहीं है बाइंग का सजेशन, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हायर लेवल पे है। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड मिड तो बताया मैंने आपको। एंड मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है सर स्टॉक क्यों नीचे आ रहा है? बिकॉज द रीजन इज इंडेक्स में क्या होता है, अगर कंटिन्यूअस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर डाउन साइड अगर रह गया तो थर्सडे के दिन वो शॉर्ट कवरिंग करके आता है। जो पर्सन मंडे के दिन चल किया, वेडनेसडे के दिन चल किया, वो पर्सन को एक दिन बाई करना रहता है, वो पर्सन को एक दिन बाई करना रहता है। इसलिए वो क्या करता है, वीकली एक्सपायरी के दिन, जैसे आज थर्सडे वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे के दिन वो बाई कर देता है, बाई करता है, देन ओनली वो मार्केट रिकवर होता है, क्योंकि वो बाइंग में बैठता है। सो इंडेक्स रिकवर होता है मगर स्टॉक नहीं होता। सो ये डिफरेंस है, मार्केट को पता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, हायर लेवल पे जैसा है थोड़ा कॉशियसली बाय करना है।
एट द टाइम अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो पूरा का 1 लाख का 1 लाख इन्वेस्ट नहीं करना है, ओनली 10,000, 15,000, 20,000। अगेन मार्केट थोड़ा डाउन आए तो अगेन 20,000, अगेन मार्केट थोड़ा डाउन आए तो अगेन 20,000, ऐसा स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट किए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड सेकेंड थिंग, ये मार्केट ऑलवेज बुलिश है बिकॉज ऑफ सम रीजन। आप देखेंगे ये इक्विटी हायर साइड जा रहा है, लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि इक्विटी हाई हो सकता है या डन हो गया हायर साइड जा रहा है बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स। एंड अगेन ये थर्ड वेव कोरोना की वजह से या जीडीपी की वजह से या कोई तो एक बैड न्यूज आ गया तो अगेन डाउन साइड आने का चांसेस है। तो यहाँ पर आप थोड़ा 20,000 ये टाइम में और नीचे आए तो और 20,000 और नीचे आए तो और 20,000, ऐसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक ही फुल अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए दिस टाइम में ये लेवल पे। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्शन देंगे 2 to 3%, 4%, देन ओनली इन्वेस्ट। हाँ, एंड गोल्ड सिल्वर काफी डाउन आया है बिकॉज ऑफ अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चांसेस ज्यादा हो रहा है, इसलिए गोल्ड सिल्वर डाउन आया है। जैसा डाउन आएगा वैसा इन्वेस्टमेंट करने का एक अपॉर्चुनिटीज अच्छा है आपके लिए, ठीक है। सो ये मार्केट बहुत ही बुलिश है, बट वेट कीजिए मार्केट डिप आने तक। मार्केट डिप आए तो आप बाइंग कर सकते हैं। ओके सर, गो फॉर क्वेश्चन। Thank you, Koti sir. Everyone have the mentality if market go up, share हाँ. value also going up. But अभी मार्केट देखने के बाद ऐसे हो रहे कि इवन मार्केट ऊपर जा रहे हैं बट अपना सब शेयर जो रेड दिख रहे हैं, मींस वो सब डाउन आ रहे हैं। दिस इज यू राइटली एक्सप्लेन, देयर इज अ गैप ऑफ मिडिल कैप एंड दिस अदर हाई कैप, सो दैट मेक अ डिफरेंस। Thank you, Koti sir, your next explain. If you have any queries related to share market and know your balance sheet, so you can raise your hand. I will unmute your and you can ask the question. Any queries? Otherwise, you type in question answer session. We can give the reply. Any related, any. If you have no queries, we'll wait for another 1 minute. And thanks to all. Thank you, Anjali madam. Thank you, Koti sir. Thank you all participants giving your valuable time. If you have any queries, we'll open group up to 8. So you can post in a group. We'll give the reply. Koti sir, you want to say anything? No sir, no sir. Thank you all. We'll meet next Thursday with new Thank you session. sir, thank you. Thank you very much. Yes, thank you, HR sir. Sir, Santosh sir raised the hand. I will ask the question. He has some doubts. Yes sir, I allowed you unmute yourself. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening sir. कई क्वेश्चन नहीं है, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, बट आई अप्रिशिएट योर वर्क एंड आई हार्टली थैंक यू फॉर you taking this type of sessions and guidelines to given our all the friend circle. It is very good initiative from your side. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you sir. It's my pleasure. And thank you for your concern. Thank you very much. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you all. We'll meet on next Thursday. Thank you very much. Yes.